जितना आपके पास पैसे होंगे उतने चांसेस ज़्यादा है कि आप ओपिनियन लीडर बन सकते हैं. In rural India, we have certain opinion leaders like your Anganwadi workers. They are opinion leaders. Nurses and midwives. They are also opinion leaders. Self-help groups. वो भी opinion leaders हो सकते हैं. Every cooperative society and NGOs. सरपंच एंड पंचायत मेंबर्स वो भी ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं. ये सब आपके ओपिनियन लीडर्स बन सकते हैं. They can people usually in the rural areas they go they try to seek opinions from them because they think that they have certain expertise knowledge from these people. I hope it is clear. Next comes is sociability. How is the social life of rural consumer? How much social they are? Kundan, what do you understand by sociability? How social are they? कितनी टाइम चाहिए बोलने के लिए? क्या कर रही है? Yes, no, मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो. बोलो. हाँ. बोलो. तुम्हें ये नहीं पता गांव के लोग? हाँ तो बोलो. तो कुछ और बोलोगे? क्या बोलोगे? How is their social life? They're rich. Socially rich. और बताओ श्रेया. जैसे गांव में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. नेबर में जब उनका फ्री टाइम होता है वो काम से खाली हो जाते हैं तो एक्टिवली सोशल होते हैं. Absolutely social होते हैं. Yes, शिवा. Vinny, how is your social life? न्यूज़पेपर बैठते हैं, साथ बैठे हुक्का पीते हैं, और ताश खेलते हैं. okay, so they have please don't talk. People in rural India they spend more time with family and friends. They have a very social life. They have a very interactive life. They have a very close-knit community with which they are every day. They are socially engaging with. Fine. So village chopals for males and females, where they gossip with other males and females while performing their daily chores. Rural neighborhood is an extension of family and sometimes an active participation decision making process. उनका जो पड़ोस है गांव में, that is playing a very important role. तो जो उनका neighborhood है, that is also an extension of their family. What they have to purchase, how they have to purchase, कहाँ से कोई सामान आएगा, कुछ नया सामान घर में आता है तो भी उसका डिस्कशन अपने पड़ोस में जरूर होता है. Unlike urban areas जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि सामने कौन रह रहा है या नेक्स्ट घर में कौन है. बट गांव में जो आपके नेबर्स हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, वो भी उनकी फैमिली की तरह हैं. As I said, every new purchase is discussed, deliberated upon and evaluated in the neighborhood, determining the acceptability, the prospect and adoption of the families. तो आप ये सोचिए कि अगर आपने उनके neighbors को influence कर दिया है तो there is high number of chances कि जो उसके आसपास के neighbors हैं they will also be purchasing your products because they discuss what they are buying and how they are doing things in neighbors. Is that clear? अभी भी वो लोग अपनी neighbors से काफी attached हैं. For example, let's take an example. Soft drink companies. What was happening was that there is a soft drink market share in the rural India also, and they found out that all the soft drink companies were having a less market share. Gradually, it was decreasing in the rural consumer. Can you tell me why? Saikat, soft drinks का market share क्यों कम हो रहा है? अरे तो ये थोड़ी बात हुई. मार्केट शेयर जो कम हो रहा है, कुछ तो नहीं थे रहते ही है. मधुर नहीं, क्योंकि बच्चे फोन में ज्यादा लग गए हैं. फोन में लग रहा तो खाना नहीं खाएंगे. हम तो खाना खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पियेंगे. बाहर ज्यादा नहीं जाते हैं. एक्चुअली हम जो ओल्ड चेन मैनेजमेंट है वो गांव में इतना नहीं है, तो आरटीएस ज्यादा प्रेफर करते हैं, रेडी टू सर्व ज्यादा प्रेफर करते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट्स गांव में ज्यादा यूज होता है.
शरबत ज्यादा RTS नेचुरल मजदूर हो Can you all be little serious in the course? Just because I'm giving you an opportunity to discuss, that doesn't mean कि तुम लोग मजाक ही करते रहो. Why? Think this is not the reason. Fitness पे ध्यान दे रहे हैं, दूध पी रहे हैं. They were actually drinking soft drinks earlier. There was a high market share of soft drinks in the rural area, but now their market share is decreasing. I'm asking you what could have been the reason. You have to think about it from a marketer point of view. क्या reason हो सकता है? फालतू की बकवास तो मत करो कम से कम. पूरे सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट आप बोल रही हैं? हाँ, पूरे सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट बोल रही है, यानी कोक, पेप्सी, थम्स अप, सबका मार्केट कम हो गया पहले से. तो they gave, ये एक्सेप्ट नहीं because then they asked how मैम many. हेल्थ कॉन्शियस हो गए मैम कोविड की वजह से कुछ लोग तो ऐसा नहीं, कोल्ड ड्रिंक का जो ये जैसा बनाया गया है कि वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो इसलिए ऐसा कुछ बताओ क्या? Now you listen to me. So the companies, they were worried that their market share is decreasing in the rural area. So there is a company, MART. I think I have told you about this. This is a rural research company, MART. Every time you have to do a research, you use this particular company, which is MART. It does a research consultancy. It find out, collect the data, it found out the actual reason. So they hired MART and they asked them, can you please find out the reason why the market share has been decreasing? And the reasons were very obvious. The reason were कि वो youth जो पहले बैठकर ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, when they were socializing, now उसी एज के बच्चे या उसी एज के यूथ वो कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं पी रहे, they are taking hard drinks. Fine, so they are taking hard drinks now rather than taking cold drinks, क्योंकि वो age of taking hard drinks has also gone down ना, so वो अब वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक नहीं, they are having their beer. Fine, when they are sitting, when they are socializing. So suddenly even गाँव में because of the penetration of alcohols and hard drinks, the soft drink जो बच्चे जो यूथ पीते थे, जब दो दोस्त मिलते थे तो शायद वो एक थम्स अप पीते थे, बट वो अब थम्स अप नहीं पी रहे, उस एज के बच्चे भी नहीं पी रहे. So this was the study they were doing when they were hanging out together. They are even consuming these alcoholics and hard drinks. This was the main reason. Is that clear? So ऐसा थोड़ी है कि वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं, वो भी अब कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर पार्टियां कर रहे हैं अपनी with only hard drinks, right? They are also chilling by drinking chilled beer. पंचायत देखा था ना आपने, कैसे खेत में वो लोग अपनी अपनी बियर लेकर आते थे ठंडी, राइट? एंड देन दे यूज्ड टू हैंग आउट एंड चिल. तो वो कुछ गलत मतलब वो कुछ अलग थोड़ी दिखाया. व्हाट इज हैपनिंग, दे आर शोइंग दैट कहां पहले वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे उस समय, उस तरीके से यस चेंज हो गया है. दे आर आल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस, नो? जब वो टेलीविजन देख रहे हैं, जब वो चीजें देख रहे हैं, तो उन्हें भी सब पता है, वो भी दे आर आल्सो प्रेफरिंग हार्ड ड्रिंक्स. इज दैट क्लियर? सो दैट इज सोशबिलिटी इम्पैक्ट. Families, I have already discussed with all of you that there is traditional joint families which is happening, which I have now converted into hybrid families या individualized joint families. Caste play a very important role in your social status. Individual like your sarpanch, caste leaders, medical practitioners, retired military personnel and priests, they enjoy higher status in the villages. In लोगों का status high रहता है villages में. People expect to be exemplary and even their purchase decisions seem to have significant influence on others. Progressive farmers को बहुत respect दी जाती है गांव में. अभी भी आप जब भी एग्री इनपुट मार्केटिंग या फील्ड में जाएंगे या रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड में जाएंगे, most of the time your helpful person will be progressive farmer. You will be approaching the most progressive farmer of the villages and then later you will be approaching the other farmers. Role of rural women. Rural women have a very their role in the rural market or in the rural society is increasing now. Women ka fine. So she has started playing major role in buying decision. Religion, caste, class, education, economics need to be kept in mind when you are approaching them. Please remember this. Whenever you are making your sales pitch, you are going to address
connect the data. You need to be very careful that which areas women you are approaching. What is the caste of women over there? What is the religion of women over there? What is the mindset of people educated? How educated the females are over there? ऐसा ना हो कि तुम data collect करते जाओ पिट कर आ जाओ. Fine. So ये सब चीजें भी common sensely you need to be very careful about, because आपको प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं कि जो आपसे कोई बात सुनेगा या कोई मिनिस्टर हो नहीं. You are just students who are going there. Sometimes as I said, आपको जाके किसी को समझाना नहीं है, वहाँ पे ज्ञान नहीं देना है, आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने हैं या आपको डेटा कलेक्ट करना है. So these are certain things. Sociability you need to consider. How progressive they are, how educated the females over there. Are they fine with talking to you, interacting with you? All those things matter. Then social events like which are uniting the women in the rural areas, like domestic violence, female feticide. What is female feticide, Shivam? What is female feticide? Shubham? Yes, what is female feticide? Female feticide ही नहीं पता है तुम्हें? वाह, इसे बोलते हैं male privilege. यही है male privilege. Yes, what is? हाँ, what is female? हाँ, क्यों पता होगा तुम्हें? क्या जरूरत है? सुनन कर, females को fetus को ही पहले ही मान लो. That is female feticide. आपको क्यों पता होगा? आपको क्यों जानना है? I am saying to Shivam. ठीक है. What is patriarchy, Shivam? आप सुन yes. पुरुष प्रधान जैसे मैंने Yes. मधुर में मधुर मारता What है. is patriarchy? What is patriarchy, Madhur? मैम इतना नहीं पता, मैम इंग्लिश नहीं आती थी. हाँ जी, what is patriarchy, कुंदन? ये भी क्यों पता होगा ना तुम्हें? नहीं, क्यों पता चलेगा तुम्हें? ये इसी से पता चलता है कितनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कितने एंटाइटल्ड है आप लोग, कितने प्रिविलेज्ड है कि लड़की हो है आप. आपको जरूरत ही नहीं है ये सब चीजें जानने की. कभी हुआ ही नहीं है सब एक बार जीवन में, क्यों पता चलेगा? हमेशा दूध का ग्लास पहले तुम्हें मिला है घर में, है ना? तो फिर क्यों पता चलेगा, है ना? आप अपने घर में प्यारे बच्चे होंगे सबसे ज्यादा, तो क्यों पता चलेगा? That is the point here is what is patriarchy? Patriarchy is male dominant society. ठीक है? कि हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा जिसमें हम रहते हैं, वहाँ पे मेल्स को पहले अहमियत दी जाती है. We are the first citizen, we are second citizen. हर चीज में उनको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि वो पैसा ला रहे हैं, या कुछ भी आप कह सकते हो. ठीक है, उनको ऊपर रखा जा रहा है. उनके विचार, उनकी प्रेफरेंसेस, उनके ओपिनियन. अगर घर में एक पलंग है तो मेल ऊपर सोएगा, फीमेल नीचे सोएगी. अगर खाना कम पड़ गया तो पहले मेल्स खाएंगे, फिर फीमेल्स खाएंगी. अगर घर में कोई पार्टी हो रही है तो मेल्स को कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है क्या जा रहा है. फीमेल्स किचन में काम कर रही है, मेल्स सोशली इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ये जो कौन कमाएगा वो मेल डिसाइड करते हैं. ये काफी जगह अब चीजें चेंज हो रही है. आई एम नॉट सेइंग इट इज हैपनिंग, बट वी आर स्टिल लिविंग इन अ पैट्रियार्की सोसाइटी. तो गांव में ये ज्यादा है या शहरों में ये ज्यादा है? गाँव में ज्यादा है, शहरों में नहीं है. शहरों में पैट्रियार्की नहीं है. पैट्रियार्की इज गुड और बैड, विशाल? For males? Why? पैट्रियार्की मतलब हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं. तो बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि हमारे किसी मतलब डिसीजन में कोई सजेशन फीमेल भी दे सकती है, बट हम उसे इस लायक समझ ही नहीं रहे हैं कि हम उससे पूछे को. Yes. Another is Sudhanshu, patriarchy is good or bad? For males? Why? डिसीजन लेने में थोड़ा वो तो उसने बता दिया. उसके अलावा क्यों? पैट्रियार्की is good or bad? Why? अभी तो सब बता रहे हैं. वैसे हमने तो कुछ है. हाँ, वैसे पैट्रियार्की is good or bad? For males? हर चीज हमें पहले पूछा जाता है. तो ये बैड है आपके लिए? आप लोग भी पूछा है. नहीं, हमें नहीं पूछ. हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेल्स के लिए good or bad है क्या है? मेल्स के लिए be honest. आपको ही पता है कि आपको क्या क्या फायदे हैं इस सोसाइटी में. You all know, आप भी इसी सोसाइटी में हैं. आपने भी अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स सबको देखा है. आप कोई बाहर से तो आए नहीं हो.
आप भी सोसाइटी का हिस्सा हो, तो आप बताइए पेट्रियार्की इज गुड और बैड फॉर मेल्स? इतना हो गया तो गुड है। इतना हो गया क्या? पेट्रियार्की इज गुड फॉर मेल्स, क्यों है बैड? पेट्रियार्की इज गुड। व्हाट इज पेट्रियार्की? मैम जैसे लोग बोलते हैं ना कि आदमी लोग की ज्यादा सुनी जाती है, तो हाँ। आदमी लोग को पूरा घर चलाना रहता है, लड़कियों का तो घर वाले अच्छे घर में देके रिश्ता कर देते हैं। तो ये गुड हुआ? नहीं हुआ क्योंकि हम किसी तुम- का बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तुम्हें नहीं लगता पेट्रियार्की? प्लीज बॉयज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? एमडी अलग चीज है, बट सोशल कॉन्सेप्ट होने चाहिए। पेट्रियार्की इज इक्वली बैड फॉर बॉयज, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, या जो तुम्हें राजा बना के रखते हैं, उसे कंबल पे लपेट के मारना भी बोल सकते हो। व्हाई? बिकॉज शुरू से ही बच्चा लड़का पैदा होता है एंड दे हैव बीन गिवन इनबिल्ट रिस्पांसिबिलिटी कि यही घर चलाएगा, राइट? इसको तो कमाना है। आप एक बार घर पे जाके बोलते मुझे नहीं करनी जॉब, मैं घर पे रहना चाहता हूँ, क्यों बोल नहीं सकते? आप सोशल स्टिग्मा, आपको दुनिया जीने नहीं देगी, आपको आपके माँ बाप नहीं जीने देंगे। आप अपने घर पे जाके बोल दो मैं नहीं कर रहा, मैंने मैं तो नहीं करना, मैं घर पे रहूंगा, मैं घर देख लूंगा, मैं घर देख लूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मेरी बीवी कमा लेगी। क्यों कमा सकती है? इफ यू हैव अ लव मैरिज एंड यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, इफ योर वाइफ इज गुड इन वर्क, शी कैन। लेकिन आपकी खुद की, आपकी जो स्टीरियोटाइप यही करने ही नहीं देगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि देयर आर मेनी मेल्स which suffer in life, which do not want to go to the same path of earning money, doing a rat race, paise, package money, they want, but they cannot because there's a huge social stigma that males cannot give. तो लड़कियों के लिए क्या बोलते हैं? शादी हो जाएगी ज्यादा, जो कि सच बात है, सच है ये। I agree, अगर हम कुछ नहीं करते तो हमारी शादी हो जाती है, we can be taken care by somebody else। हम कितने भी फेमिनिस्ट या इंडिपेंडेंट बातें करें, बट ये सच है, ठीक है? अगर मैं नहीं भी कमाती तब भी माय हस्बैंड विल बी टेकिंग केयर ऑफ माय ऑल नीड्स, रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय हिम, ठीक है? ये एक बोल सकती हूँ मैं। बट फॉर मेल्स, उनको नहीं कमाना तब भी उनको कमाना पड़ेगा। उनकी नौकरी अगर नहीं चली जाती है तो कितना प्रेशर रहता है मेल्स के ऊपर, यू नो, एवरी डे कि नौकरी नहीं छूटनी चाहिए, घर कौन चलाएगा, ये शुरू से ही मेल्स के ऊपर रहता है। मेल्स कौन कमाने वाली लड़की बिना कमाने वाली लड़की से शादी करेगी? हाँ, कमाने वाली लड़की बेरोजगार से कौन सा? I'm not asking about this. I'm not talking about this debate. वो भी तो एक बात है ना, ये भी तो एक बात है। कौन कमाने, कौन what you're saying, कौन ना कमाने वाली लड़की? कौन कमाने वाली लड़की बिना जॉब? हाँ, बेरोजगार। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि जो लड़के होते हैं वो बिना कमाने वाली लड़की से जॉब शादी करते हैं? What is his point, sir? हाँ, उसका मतलब ये है कि कोई जो लड़की है वो बिना कमाने वाली लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, तो इसमें क्या, तो क्या हो गया मतलब? पर लड़के कर लेते हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो पेट्रियार्की सोसाइटी है, तो यही तो पेट्रियार्की सोसाइटी है कि तुम्हें कमाना ही है। सत्य प्रकाश, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम मेरे साइड हो या तुम मेरे अगेंस्ट हो? तो बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम ये बोल रहे हो कि मैम अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कोई कमाने वाली लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, ये बोल रहे हो ना तुम, है ना? एक तो चुप हो जाओ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए कमाना जरूरी है। मैं अगर नहीं कमाऊं तो चलेगा, मुझे मिल जाएगा कमाने वाला आदमी, तुम्हें नहीं मिलेगा। यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये पेट्रियार्की सोसाइटी इज सो बैड, इट इज इक्वली हार्श। अगर मेल्स एक्सप्रेस भी करते हैं, अगर मेल्स सॉफ्ट होते हैं, अगर मेल्स एक्सप्रेस करते हैं, दे कैटेगराइज देम इनटू समथिंग, यू आल्सो नो दैट। फाइन, रो दे बेचारे, नॉर्मल इमोशंस है, आंसू नहीं, रो नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, जबकि मेल्स आर साइकोलॉजिकली मोर वीकर एंड सॉफ्टर। बट शुरू से ही बोला है, तू क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, क्यों रो रहा है, आंसू क्यों आ रहे हैं, रोएगा तू अब क्यों? जबकि दे कुड, हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं मेल्स में ज्यादा? दे आर मोर स्ट्रेस्ड। I'm not favoring males and females, please understand. Feminism लोग सोचते हैं छोटे कपड़े पहन लिए, ड्रिंक में हमेशा बोलती हूँ, ड्रिंक कर ली, गालियां दे दी लड़कियों ने, that is not feminism. Feminism is a fight between equal rights of males and females. मैं ये बोल रही हूँ, जब मैं
प्लेसमेंट के लिए बैठती हूँ तो मुझसे ये नहीं पूछा जाए कि तुम्हें 15 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं जबकि मेल को 15 लाख रुपए मिलते हैं, मुझे क्यों कम पैकेज मिल रहा है ये सोच के, बिकॉज आई एम फीमेल, राइट? I have my body issues, I have my things, that is biological things, I cannot fight against it. But आप उन चीजों पे गर्ल्स को कम पैसा देते हो, you are judging girls on the basis of characteristics. आपको लगता है गर्ल्स का प्रमोशन हो गया, boys will be passing comments, you know, overwork किया होगा, overtime किया होगा, relationship with the boss, कितनी चीजें होती है, कितना लूज कमेंट बोला जाता है कैरेक्टर्स के लिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बॉयज बेटर है या गर्ल्स बेटर है. पेट्रियार्की इज ओनली फेवरिंग वन जेंडर, एंड बाय फेवरिंग जस्ट वन जेंडर दे आर आल्सो इक्वली हार्श ऑन बॉयज. बॉयज को लगता है कि उनका बहुत सुपीरियर पोजीशन है बिकॉज दे आर ओनली अर्निंग. बट अगर दोनों जेंडर्स इक्वली कमाएंगे और इक्वल अपनी राइट एक्सप्रेस करेंगे, क्यों लोगों को बुरा लग रहा है कि फीमेल्स आर एक्सप्रेस, जो फीमेल्स की बातें आती है कि फीमेल्स, यस आई अंडरस्टैंड, हर तरह की सोसाइटी में लोग होते हैं. फीमेल्स आर आल्सो मिसयूजिंग लॉज, आई एग्री. फीमेल्स आर आल्सो मैनिपुलेटिंग, आई एग्री. Females are taking advantages of laws which are in favor of them, I agree. हर तरह के लोग सोसाइटी में होते हैं, बट वो भी आज बहुत छोटा सैंपल है. अगर आप ओवरऑल सैंपल से डिसाइड करते हो, वो सैंपल ऑफ फीमेल्स भी बहुत कम है जितना एजेस से females have been going through. You cannot imagine. I don't have to tell you, you are living in the society. कितनी stages पे, कितने ages पे. और patriarchy, बहुत सारे गांव में ना लोग बहुत खुले दिमाग के भी होते हैं. ऐसा नहीं कि गांव में ही पेट्रियार्की चल रही है, शहर में अलग लेवल की पेट्रियार्की होती है. You have seen that movie, जिंदगी not दिल धड़कने दो. Yes, ma'am. उसमें क्या बोलते हैं वो, I have allowed my wife to work. पता भी नहीं होता मेल्स को कि कहाँ उनका पेट्रियार्की इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है. When you are saying I have allowed, अगर मेरे हस्बैंड पार्टी में बोलते हैं I have allowed Neha to work, she is free to go wherever she wants, and never stop her from wearing any kind of clothes because he is allowing me. तो ये पेट्रियार्की, he is allowing me. Why do I need his permission? मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगी, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगी, मुझे जो पीना है मैं पीऊंगी. जैसे वो मुझसे नहीं पूछ रहा वैसे ही मैं को नहीं पूछना चाहिए. बट यूजुअली मेल्स के अंदर होता है कि भाई हमने अपनी लड़कियों को नहीं रोका कुछ करने के लिए, आपसे पूछ कर ये, लेकिन वो बहुत प्रिविलेज समझते हैं बोलने के लिए. और ये इतना डीपली इनग्रेन्ड है इन मेल्स कि उनको लगता है कि इसमें क्या गलत है. मैंने कुछ बोल दिया तो मैं फीमेल्स को भड़का रही हूँ, मैंने कुछ बोल दिया इसमें कुछ गलत ही नहीं है. उन्हें समझ में ही नहीं आता, राइट? आपसे जब नहीं पूछा जाता कि आप इस उम्र में कमा रहे हो या आप अपनी सी आधी उम्र की लड़की से शादी कर रहे हो, दूसरी बार शादी कर रहे हो, तो प्रियंका चोपड़ा को क्यों ट्रोल किया जाता है कि उसने 15 साल बड़े लड़के से शादी कर दी. छोटे आप लड़के तो हमेशा ही छोटी एज की लड़कियां ढूंढते हैं शुरू से. नहीं मैम. अच्छा, बड़ी भी ढूंढते हैं. I am again saying, please, if you have the purpose is just to make you understand that what actually is feminism and what actually is patriarchy. It is not a debate against men. I am again saying, लड़कों को लगता है हमारे एंटी बात हो रही है, आपके एंटी बात ही नहीं हो रही है, आपके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं रहा. It's just about we are trying to bring girls at par, क्योंकि लड़कियां अभी भी at par नहीं है. जो गलत है वो तो लड़के भी गलत है जहाँ पे, और जहाँ पे गलत है वहाँ तो लड़कियां भी गलत है. ऐसा नहीं है कि लड़कियां गलत नहीं है. Yes, they are putting wrong dowry cases. They are taking advantages of their genders. Yes, they are doing it. Yes, but you can't. इस चक्कर में आप उनको नहीं छोड़ सकते ना जो एक्चुअली में सफर कर रही है. प्लीज अंडरस्टैंड, जो एक्चुअली में सफर कर रही है. फिर मैं ये नहीं बोल सकती ना कि भाई लड़कियों फायदा उठा रही है वो कुछ औरतों के चक्कर में. मैं आई कैन नॉट स्टॉप रेजिंग माई वॉइस फॉर फीमेल्स हु आर एक्चुअली सफरिंग. एंड जब आप मैटर में देखोगे ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोगों से मेल से आपको ऑप्शन दे, अपने मम्मी पापा के साथ रहे या इन लॉज के साथ रहे. कितने लोग इन लॉज के साथ रहे? पेट्रियार्की सोसाइटी है. कभी फीमेल से पूछा जाता है लड़की से, अगर वो ये भी बोल दे कि नहीं मैं ना अपने माँ बाप के पास रहूंगी ना तुम्हारे माँ बाप के पास रहूंगी, हम अलग रहेंगे, तो ये तो घर तोड़ने वाली लड़की है, इसको तो घर बात कर नहीं आता, इसको तो रिश्ते नहीं बनाने आते. आप रह लो उसके पेरेंट्स के साथ, रह लोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बट आई एम नॉट सेइंग, आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अबाउट
about males and female. It is about respecting. Please, it's all about respecting. Please understand. I'm not saying कि आप घर जमाई बनो. मैं अभी भी यही बोल रही हूँ. Please get your call. It's about respecting. जितनी respect आप चाहते हो आपके parents को मिले, आप उतनी respect उसके parents को दे दोगे ना, वो आपके साथ खुशी-खुशी रहेंगे. Because that is the mindset with which females are being raised in our society. हमें शुरू से ही बोला गया है, ये तो इसका घर है ही नहीं, ये तो पराए घर की लड़की है. शुरू से आप सोचो, आप जिस घर में पैदा हो रहे हो, उस घर में शुरू से ही आपको ये बोला जा रहा है, ये तो इसका घर है ही नहीं, ये तो जाएगी, ये तो है ही नहीं, इसको तो किसी और के घर में जाना है. The moment you are being born, आप जो जिस दूसरे घर में जा रहे हो, वहां पे तो पता ही नहीं होता ना किसके घर में रहना है, वो कैसे रह रहे हो. तो the kind of emotional stress which females goes through, it's too much. You cannot even imagine. And the kind of financial pressures which male face, that is also very extreme. Sometimes depression, stress, heart attack, it is because कितना वो अपना परिवार के लिए कमाए. It's very difficult in the current time कि वो खुद अपने अकेले कमा सके. He needs his wife or his family to support him. So this is because of the patriarchy culture. क्यों? जरूरी नहीं है ना, कुछ males जो opposite होते हैं, जैसे कि आप देखिए बहुत सारे शेफ हैं. It took them so many years to convince people that they can become Michelin chef, they can be a good chef. वो अभी भी लोग उनको let down करके बोलते हैं खाना बनाते हैं. You read their autobiography, they will be telling about Sanjeev Kapoor. Read about them. Such classic good cooks they are. कितने बड़े-बड़े उनके restaurants हैं. आज भी तुम उनकी autobiography कि they had to fight so much for the society because उनको नहीं था. In those manly traits, they were not into all those things. They can also dance, they can also sing, they can also cook things, they can also have, goes with both the party. So patriarchy society गांव में बहुत ज़्यादा है, yes. शहर में शहर की तरह बहुत ज़्यादा है. हम उतना नहीं है, but शहर में भी है patriarchy society, आज भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है. और गांव में बहुत ज़्यादा है. डाउरी अभी भी बहुत, दहेज प्रथा चलती है, ठीक है, डाउरी होती है. बिहार में लड़कों को तो पकड़ भी लेते हैं, अगर आपकी नौकरियां लग जाती हैं, है ना, पकड़ के शादी करवा देते हैं ना. अगर ये चाहेंगे सत्य प्रकाश, इनका हायर पैकेज हो सकता है. मतलब लेकिन होता है ना, हाँ, सरकारी नौकरी, ठीक है, हाँ, तो वो सब बहुत चलता है. डाउरी बहुत चलती है. घरेलू हिंसा बहुत चलती है. फीमेल फीटिसाइड बहुत है अभी भी. ये सारे इश्यूज है. मैं कोई बाहर से नहीं बोल रही हूँ. जब आप गांव में जाओगे, जब आप चीजें देखोगे, आपको खुद लगेगा. मैं ये कुछ भी अपने आप से नहीं बना रही हूँ. मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था, वेयर मेरा सिर्फ ये काम था, MFI का प्रोजेक्ट था, जहाँ मुझे जाके फीमेल्स की ना कहानी लिखनी होती थी. एंड व्हाट ऑल थिंग्स देयर, डेमोग्राफिक स्टडी करना पड़ता था. It was such a depressing project कि अगले रोज दिन आके मेरे को ऐसा लगता था कि I need to get some positivity in my life. It was so depressing कि मुझे लगता था कि बस मैं पैदा हो गई और मैं जी रही हूँ, वही मेरे लिए एज अ गर्ल बहुत ज्यादा है. छोटी छोटी एजेस में रेप, फादर रेप कर रहे हैं, भाई रेप कर रहा है, अबॉर्शन, बच्चे हो रहे हैं उनके 12-12 साल, 18 पीरियड्स हो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, फिर उनके रेप्स हो रहे हैं, सीवियर, इतनी बुरी कंडीशंस है, इतना ज्यादा हैरासमेंट है. दैट You are privileged to be men. I tell you, there are इतनी सारी चीजें. आप किसी लड़की से पूछो, ठीक है, जो भी है, they need nothing, but the kind of freedom which males experiences is so good. तुम जो एक्सपीरियंस करते हो, जो तुम्हें फ्रीडम है, तुम खुले कहीं भी रात को निकल सकते हो. अपने तुम्हारे दोस्त बोलते हैं आ जाओ, तुम्हारी खुद की बहनों को तुम नहीं जाने देते ना, क्योंकि तुम्हें पता है बाहर कैसा माहौल है. तुम खुद बोलते हो ना कि छोटी है चुटकी जहाँ भी है टाइम से आ जाओ. क्यों बोलते हो? तुम्हें नहीं पता बात, तुम कहीं अलग से रह रहे हो. तुम्हें खुद अपनी बहन की टेंशन होती है अगर वो कहीं जा रही होती है. तुम पूछते होगे ना, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, या तुम्हारी मम्मियों के बारे में पूछते ही होगे ना कि मम्मी टाइम से आ जाना. क्यों पूछते हो? क्योंकि तुम्हें पता है बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है. When a doctor who is 35 years of age, वो रेप हो रही है, मतलब आप सोचो मुझे अपनी बेटी की कब तक टेंशन करनी है, मेरी मम्मी मेरी कब तक टेंशन करनी है. बचपन में करें, पैदा होते ही करें, फीटस में करें, कहाँ तक चलेगी ये चीज. तो बात है कि ये एक पैट्रियार्की सोसाइटी है, आपको प्रिविलेजेस है, लेकिन कहीं कहीं ये प्रिविलेजेस मेल्स के लिए हार्मफुल है. फेमिनिज्म की जो लड़ाई है, मैं फिर बोल रही हूँ जस्ट टू क्लियर कट, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इट्स नॉट फेवरिंग फीमेल, इट इज फॉर इक्वल राइट्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स.
Is that clear? ज़्यादा ज्ञान हो गया इसमें. So these are the things which are uniting the rural consumer. Rural consumer workforce is increasing. Women constituent of 33% of farmers, 47% farmers, females farm laborers हैं. टी प्लांटेशन में 47% फीमेल्स हैं, फॉर कॉटन प्लांटेशन में 46%, सोइंग ऑफ सीड्स में 45%, 39% इन वेजिटेबल कल्टीवेशन. जितने भी कंज्यूमर बिहेवियर के रोल्स हैं उसमें फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दे ऑल्सो आर इन्फ्लुएंसिंग क्या घर में सामान खरीदना है क्या नहीं खरीदना, क्योंकि एजुकेशन हो रहा है, उनका रोल बढ़ रहा है, चीजें बदल रही हैं, धीरे बदल रही है बट बदलाव आ रहा है. तभी बोलते हैं एजुकेशन जरूरी है, तभी बोलते हैं आप पढ़ाई कीजिए. इसलिए नहीं बोलते कि आप ग्रंथ लिखोगे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी सोच बदलती है. राइट? सो दिस इज 35% फीमेल्स इन रूरल एरियाज आर वर्किंग, एंड 21% इन सिटीज. ये डेटा आपको अजीब नहीं लग रहा कि शहरों में औरतें कम काम कर रही हैं और गांव में ज्यादा काम कर रही हैं? क्यों? टेक्निकल स्किल्स. नॉट टेक्निकल स्किल्स. क्यों? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? गांव में जॉब्स ऐसे हैं जो वुमेन्स आराम से कर लेती हैं. अच्छा, और शहरों में ये भी है कि छोटी जॉब्स पे काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से काम करते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप से काम करते हैं. और कुछ? मैम विलेजेस में ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता ना काम, आसपास विलेजेस में ईज ऑफ डूइंग जॉब इजी है. आंगनबाड़ी है. कैसे इजी है बोलो? मैम क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं फील्ड में. वो अपने बच्चों को समझ भी आ रहे होता है. Yes, he is right. What is happening is अगर आप डेटा देखें और आप रीजन देखें कि शहर में लोग जॉब क्यों छोड़ रहे हैं. शहर में फीमेल्स आर फॉलोइंग एंड फैमिलीज आर हैविंग एक्सेसिव प्रेशर नाउ. एक्सेसिव प्रेशर क्योंकि फैमिलीज नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे होते हैं, देन मोस्ट ऑफ द एक इंसान को जॉब छोड़नी पड़ रही है. ठीक है? बिकॉज सी व्हेन यू हैव अ चाइल्ड यू कैन नॉट लेट गो द चाइल्ड. आपके खुद के इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, मदरली इंस्टिंक्ट बोल दीजिए, फादर इंस्टिंक्ट बोल दीजिए. एज अ फैमिली आप बोलोगे कि अब हमारा परिवार है तो वन हैज टू लीव द जॉब, वरना उसको कौन रखेगा, या आपको फुल टाइम हेल्प चाहिए, है ना. छोटे बच्चों को तो यूजुअली जो डेटा है वो ये बताता है कि शहरों में औरतें इसलिए जॉब छोड़ रही हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं है ना, या तो आपके पेरेंट्स आके रहें या इन-लॉज आके रहें. यूजुअली जितने भी मेट्रोज हैं वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज आती हैं, तो फिर नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स इन अर्बन एरियाज ज्यादा है. गांव में क्या होता है, एज ए सेड सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा है, पड़ोसी के साथ एंगेजमेंट है, लोग एक दूसरे के साथ बहुत सोशल रहते हैं, उनका जो सर्कल है जहाँ वो काम करती है वहां भी वो अपने बच्चों को ले जाके जॉब कर सकती हैं, काम कर सकती हैं. तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, लोग समझते भी ज्यादा है. पड़ोसी आपको बच्चा पाल देता है, आपका बच्चा पूरे टाइम पड़ोस में ही रह रहा है यार, तो दैट इज मोर देयर इन द रूरल इंडिया इटसेल्फ. इज इट क्लियर? कास्ट को अगर हमने इंट्रोड्यूस किया गया है, हाँ, तो जो रूरल वुमेन है वो सिर्फ लोअर कास्ट की मिलेंगी रूरल एरिया में पेइंग जॉब जो कर रही है. ये तो सब जगह ही है. तो अपर कास्ट में कौन सा? शहरों में मतलब शहरों में अपर कास्ट की जो वुमेन से वही ज्यादा वर्क करती है. नहीं है तो सही विशाल, दिमाग में तो होता है. बट हाँ, ये जो तुम बोल रहे हो शहरों में अपर कास्ट की वुमेन काम कर रही है और गांव में क्योंकि वो इसका लोअर कास्ट की फीमेल्स क्या काम कर रही है, तो देखो क्वालिटी ऑफ वर्क. ये है कि मजबूरी है, उनको काम करना पड़ता है. हाँ तो नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क भी तो होता है. सपोर्ट फैक्टर नहीं है, मजबूरी भी फैक्टर है. क्योंकि एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है, वो भी है. यहाँ पे हम अपनी चॉइस से काम कर रहे हैं. हाँ बोलो. मैम गांव में अगर हायर क्लास लोग जॉब करेंगी लेडीज, तो वो पैट्रियार्कल अप्रोचेस आ जाएंगे कि हमारे घर की बहू गई है. हाँ, ही इज राइट. पढ़ा भी देते हैं फिर भी बोलते हैं कि हम घर पे रखेंगे. पढ़ाई कर रहे हो शादी के लिए, ये भी होता है. तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हारी शादी अच्छी हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए. मतलब बेचारी लड़की को पढ़ा भी इसलिए रहे क्योंकि लड़का अच्छा मिलना चाहिए उसको. तो वो अप्रोच ऐसी है, उसमें खुद का वजूद तो है नहीं, तो लड़का अच्छा मिलेगा, लड़का पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा, तो इसलिए एब्सोल्युटली राइट. तो उसको पढ़ाते हैं. इसलिए भी नहीं पढ़ाते कि भाई शहर में जाएगी तो ज्यादा बुद्धि आ जाएगी या ज्यादा समझदार हो जाएगी. ये भी बोलते हैं ज्यादा समझदार हो जाएगी, बुद्धि इसके दिमाग में चली गई है, पढ़ाई इसके दिमाग में चली गई है. 37% of rural women consumer make purchases on their own. 84% of rural women are traveling outside the village to nearby town, and so जो फीमेल्स हैं वो शहर भी जाती हैं, अपनी चॉइस से सामान खरीदती हैं, अपना से भी है उनका. ये सब चीजें हो रही है. इन एग्रीकल्चर दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस
activities like sowing, transplanting, weeding, irrigation, fertilization, application and harvesting. Is that clear? Hero Corp project जो है, that is a project which was started by Hero Company. उसका टैगलाइन था चलो सखी प्लेजर स्कूटी सीखे, which had been a great success. इसमें क्या किया था, बिहार में कैंपेन स्टार्ट किया था. बिहार में कैंपेन स्टार्ट किया था to teach school girls how to ride a स्कूटी. अब जब उन्हें स्कूटी चलानी आएगी तभी तो वो डिमांड करेंगे स्कूटी का. तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया जहाँ पे ये स्कूल गर्ल्स को बिहार में स्कूटी चलाना का ट्रेनिंग दे रहे थे. This was not only dedicated engagement of the consumer, they also prepared Hero MotoCorp and the consumer when the demand will be created. जब आप उन्हें सिखाओगे वो एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा. जब वो चलाएंगी तो उनको लगेगा कि नहीं डिमांड जनरेट होगी उस चीज की. And this is how it was working. The company also pinned themselves to the latent needs of the consumer. What is the latent need, Kuldeep? What is the latent need? कुलदीप ही है ना ये? दीपेंद्र. तो बोलो ना. 3 दिन से 4 दिन से मैं कुलदीप हूँ. कुलदीप का है? Yes, दीपेंद्र. मैम लेटेंट नीड जो मैम कमिंग नीड्स हो. कमिंग नीड्स पढ़ाया था मैंने नीड्स के बारे में. What needs भी वही होती है लेकिन what is latent? जो अपग्रेड होती चेंज होता है. अच्छा, जो अपग्रेड होती है, जो चेंज जो करंट बेशर्मो. अच्छा, what is latent needs? हाँ, जो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो हिडन हो. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हीरो मोटोकॉर्प was spinning the latent needs of consumer. Please explain, Tarun. तो सांस ले लो तरह. Yes. मतलब ये जो स्कूटी वाला जो उनका कैंपेन था ना, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि अभी हम इनको स्कूटी चलाना सिखा देते हैं और फिर अभी मतलब उनकी नीड नहीं है स्कूटी लेना, लेकिन इन फ्यूचर जब वो स्कूटी चलाना सीख जाएंगी तब वो स्कूटी जरूर लेंगी. Yes, Ayush, what does the statement mean? सिखा रहे हैं. Chop. लेटेंट नीड का मतलब ये हुआ कि वो मतलब कि जहाँ लेवल में है वो एबिलिटी कर नहीं पा रहे. तो हीरो मोटर जो है वो उसको पुश अप किया, मतलब कि सिखा रहा है. What is latent need है भट्टाचार्य? What is the latent need of females? चलो बताओ. मैम जैसे What is the latent need of female? हाँ कांक्षा. अक्षिता. Yes. विदाउट किसी डिपेंडेंस नीड के ऊपर वो अपने आप मार्केट जा सके. तो क्या है ये? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. ये हर लड़की की लेटेंट नीड है, वो बोले या ना बोले. आप उसको मत बताओ कि उसे कितना पढ़ना है, आप उसको मत बताओ कि उसे क्या पहनना है. शी शुड बी फ्री टू. वो सुन लेगी आपकी बात, वो सुनेगी भी आपकी बात, लेकिन अगर आप उसे बताओगे तब नहीं सुनेगी. आप समझ में आ रहा है? आप उसे मत बताओ, उसको भी पता है उसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. बट इफ यू आर डिक्टेटिंग हर, यू आर ऑर्डरिंग हर, यू आर कंट्रोलिंग हर, तब इशू आता है. आप मत बोलोगे उसको कहाँ जाना है, उसको भी पता है उसे कहाँ नहीं जाना. बट जहाँ प्रॉब्लम आती है कंट्रोल की, वहाँ इशू आता है. वो खुद आपकी बात सुन लेगी when you will be telling, if you are not controlling. But the point is boys को सोचते हैं हम कंट्रोल करेंगे, हम बताएंगे तो ही हम अल्फा मेल होंगे, तभी हमें पता चलेगा, तभी हमारी मर्दानगी है उसे कंट्रोल में रखनी. वो कभी भी किसी को कंट्रोल में रखने से कोई नहीं समझता है. आप उसको फ्रीडम दो, वो खुद कंट्रोल में रहता है. सबको अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज पता है. बट हमें लगता है हम डिक्टेट करेंगे. हम लेटेंट नीड्स फीमेल्स की कुछ नहीं है, लाइक सत्यप्रकाश से. एग्जैक्टली, इट्स फ्रीडम. एवरी फीमेल नीड्स फ्रीडम, क्योंकि मेल्स के पास फ्रीडम है. यू हैव दैट फ्रीडम. आपको उसकी वैल्यू हो या आप आइडेंटिफाई करो या ना करो, बट यू हैव अ फ्रीडम टू लिव योर लाइफ ऑन योर चॉइसेस. फाइन. सो लेटेंट नीड्स जो है उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं. तो क्या होगा, भाई को नहीं बोलना पड़ेगा कि यार स्कूल छोड़ दे, कॉलेज छोड़ दे. उससे नहीं बोलना पड़ेगा, पापा से नहीं, जब मन किया तब चले गए, खुद भी ले आए सामान, कहीं मार्केट मम्मी को लेके जाना हो, इसमें ही वो खुश हो जाती है. बड़ी बात है उसके लिए. वो अपनी मंजिल से जा रही है, चला रही है स्कूटी. सो दीज आर द लेटेंट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड दे आर ट्राइंग टू टारगेट इट. यस यस, बोलिए. एनी अदर व्यू पॉइंट? एग्री नहीं करते हो विनीत तुम मुझसे? हाँ. अच्छा, किसको? एक्सीडेंट पड़. अच्छा ठीक है, तुम सिखा देना ब्रेक लगाना. यस यस. सो व्हाट इज इट? दिस इज अ कैंपेन व्हिच इज हैपनिंग where they are teaching females about
to ride a scooty, how to ride, how to communicate, how to go, and ये पूरा workshop females oriented ही हुआ था because females का role बढ़ रहा है। एक चीज और, आप अब मार्केटिंग आपकी फ्लॉप है अगर आप सिर्फ एक ही जेंडर को टारगेट करके मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि आप एक बहुत मेजर शेयर सोसाइटी का इग्नोर कर रहे हो। स्टैनले के बारे में जो मैंने एक बार पोस्ट डाला था, उसमें क्यों वो फेल हुआ था, क्योंकि वो मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट आए थे। जैसी फीमेल्स ने आके उसे प्रमोट किया, स्टैनले 12,000 का एक सिपर मिलता है, 13,000 15,000 का, ऑल बिकॉज आप एक सेक्टर ऑफ मार्केट को इग्नोर कर रहे हो, विच इज सच अ बिग पॉपुलेशन, उसको टारगेट ही नहीं कर रहे हो, उसको सामान ही नहीं बेच रहे हो, तो कैसे आप सोच सकते हो कि आप ग्रो कर रहे हो? इज दैट क्लियर? हाँ, एक्स नहीं चला था, तो वो अलग चला था क्योंकि इंसान को ये सब चीजें देखनी अच्छी लगती है ना। सेक्सुअलाइजेशन उसका भी एक अलग इशू है, वो भी एक अलग चीज है। कुछ लोग सेक्स के नाम पे चीजें मार्केट में बेचते हैं, उनको अच्छा लगता है। गंदी लैंग्वेज, कस लैंग्वेज, गाली गलौज के शोज ये ज्यादा चलते हैं। यस, ये सब चलता है। यस, बेलेंसियागा एंटी एनिमल्स है, प्रोटेस्ट है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट वो बनाते हैं बैग, फिर भी चलते हैं, लाखों में बिक रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी है ना, दिस इज अ वेरी हिपोक्रेट सोसाइटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग जो बोलते हैं वो करते भी नहीं है, और अंदर से सबको वही अच्छा लगता है, अंदर से मेल्स को भी अच्छा लगता है दैट दे आर डोमिनेटिंग सोसाइटी कहीं ना कहीं, व्हिच इज अ फैक्ट। आई नो इट इज देयर, फाइन। जब उनको बोला जाता है तो उनको भी उनको अच्छा नहीं लगता जब फीमेल्स आर बीइंग अवेकन्ड कि भाई तुम्हारी राइट्स है। उनको लगता है कि लड़कियां कर तो रही हैं हमारे साथ इतना बड़ा, एलिमनी ले रही हैं, ये कर रही हैं, डाउरी के अगेंस्ट कितने कंपैरिजन आते रहते हैं। बट ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट सत्यप्रकाश जो तुम बोल रहे हो ना, बहुत डीप थॉट है कि हर चीज गलत तरीके से भी बेची जाती है, गलत चीजों के मुद्दे ज्यादा उठाए जाते हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती है, लोगों को कहीं ना कहीं वो चीजें ज्यादा पसंद है, इसलिए वो चीजें ज्यादा बिक रही है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी वेरी ओपन, समय विच इज अ न्यू कॉमेडियन, such a dark and bad humor he does, you cannot sit and watch those shows, but अब वो कौन करोगे करोड़पति में, he is being invited, he is sitting in front of अमिताभ बच्चन। So ये आज का जनरेशन बोल दो, या आज का जनरेशन बोल दो, या ये माइंडसेट बोल दो कि ये सब चीजें प्रमोट हो रही है, which is a very sad state of society। आगे जाके क्या ह्यूमर होगा, क्या कॉमेडी होगी, कितने गंदे जोक्स हो सकते हैं फीमेल्स पे, मेल्स पे, सेक्सुअलिटी पे। This itself shows कि where the society is going। एक जमाना था कि आप जोक्स हंसी मजाक के लिए सुनते थे, अब जोक्स ऐसे हो गए कि नॉर्मल जोक्स पे तो लोगों को हंसी नहीं आती जब तक उसमें कुछ गंदगी ना हो, या डबल मीनिंग ना हो, या गाली ना हो, which is a fact। तो आपका नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर तो खत्म ही हो गया, आपको डार्क ह्यूमर ही चाहिए हंसने के लिए, राइट? सो दिस इज द सोसाइटी, इवन आई कैन नॉट स्किप इट, इवन यू कैन नॉट स्किप इट, इट इज हैपनिंग, हिज शो इज रूलिंग। उसने अपना ऐप भी निकाल दिया है, राइट? क्यों निकाल रहे? पॉपुलर हो रहा है क्योंकि गाली गलौज कर रहा है, गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर है, गंदगी बोल रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है देखने में, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। सो आपने जो बात बोली, दैट इज अ वेरी डीप मीनिंग अबाउट। Yes, people are purchasing it. क्या करें? But it is sad. It is very sad. It is very sad for the next generation. Yes, coming to the next factors, which is one is what was that? One is cultural factor. Second was social factor. Third is personal factor. Personal factor is कि rural consumer की age क्या होगी, lifestyle क्या होगा, राइट? किस एज, किस लाइफस्टाइल के लोग होंगे, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। जो जवान लड़के हैं उनके अलग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जो फीमेल्स हैं वो अलग प्रोडक्ट खरीदेगी, लाइफस्टाइल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो सेकंड इज ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो फार्मर है या वो सैलरी अर्नर है या वो शॉपकीपर है, उन सबकी सेम सैलरी हो सकती है, सेम इनकम हो सकती है, लेकिन उनका बाइंग का तरीका अलग होता है। जैसे कि हमारी फैमिलीज हैं, जो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है वो अलग तरीके से प्रोडक्ट खरीदती है, जिनके घर में सर्विस करते हैं लोग, उनका अलग बजट सिस्टम चलता है घर में। ऐसे गांव में है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जो शॉप चला रहे हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन सबका परचेजिंग ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, तो वो उस अनुसार प्रोडक्ट खरीदेंगे। Purchasing power of an individual plays a significant role in the choice of products. People economic circumstances are dictated by their disposable income, savings, debts, credit worthiness, attitudes towards spending and saving. Rural consumer, please listen to this point, rural consumer is elected to go for credit purchase.
गांव वालों के लिए एंटी है ये कि वो उधार पे सामान खरीदे, जबकि वो शॉपकीपर्स में अपना एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जो ना लास्ट में दे रीपे बैक द अमाउंट। बट यूजुअली उधारी पे सामान, बड़ी बड़ी चीजें खरीदना वो उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, उनकी रेपुटेशन के अगेंस्ट है। बेटी की शादी के लिए लोन अगर उन्होंने ले लिया तो यानी वो बहुत उनकी इज्जत के बहुत नीचे बात हो गई, ठीक है। अगर उन्हें कुछ ट्रैक्टर खरीदना है तो भी अगर उन्होंने किसी भाई से पैसे लिए, किसी क्रेडिट पे वो सामान, क्रेडिट कार्ड का सिस्टम वहां नहीं है, क्रेडिट पे वो सामान ज्यादा नहीं खरीदते, ज्यादातर वो इंस्टेंट पेमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? Lifestyle deals with everyday behaviorally oriented facet of consumer. What are their values, feelings and attitude, interest and opinion. तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है। एक्टिविटी मतलब आप क्या करते हो, आप क्लासेस लगा रहे हो, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या है, उसके बाद क्या आप इवेंट्स कर रहे हो, ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको किस तरह का खाना पसंद है, किस तरह के फैशन है, किस तरह की आपकी फैमिली है, ये भी आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है। ओपिनियंस, आपके ओपिनियन कैसे हैं, आप प्रोग्रेसिव माइंड के हो, आप रिग्रेसिव माइंड के हो, आप पेट्रियार्कल माइंड के हो, पॉलिटिकल माइंड के हो। फाइन, एजुकेशन, सोशल, इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस आपके ओपिनियन पे बनता है। आपके जो भी ओपिनियन है, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो आज थोड़ी बना है। इतने सालों से जो आप देख रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जिनके साथ बैठ रहे हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, उन सब बातों को देखकर आपका ओपिनियन बन रहा है ना। डेमोग्राफिक, एज, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, ज्योग्राफी, ये सब आपका डेमोग्राफी इन्फ्लुएंस करता है और पार्ट है आपका लाइफस्टाइल का। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट स्टेटस एंड सिंबल फॉर रूरल कंज्यूमर, जैसे कि शहर के लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव के लिए भी स्टेटस सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करते हैं फैक्ट, बट देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। अगर उनको द स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज demarcated as a display of marked difference in the criteria for evaluation। अगर उनको टेलीविजन खरीदना है तो वो प्रेफर करेंगे कि उसमें ईज ऑफ ऑपरेशन हो। लाइक अगर ये रिमोट है, इसे बहुत सारे बटन है, सो वो प्रेफर नहीं करेंगे इस रिमोट को, because it will be scary, it will be sophisticated, it will be difficult for them to operate. Rather than number of features, they look for ease of operation. Please understand. आप सोच रहे हो मैं उनको 20 फीचर दूंगा टेलीविजन में, उन्हें चाहिए ही नहीं। उन्हें ईज ऑफ ऑपरेशन चाहिए कि भाई उनका चैनल चल रहा है, उनको समझ में आ रहा है, ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कहाँ से बदल रहा है और चैनल कहाँ से चेंज हो रहे हैं, उन्हें वही चाहिए। आप उन्हें स्मार्ट टीवी दे रहे हो, फेसबुक लगा रहे हो, इंस्टाग्राम लगा रहे हो, 10 चीजें कर रहे हो, उनको वो सब चीजें नहीं चाहिए। जैसे उनके लिए अगर उन्हें यूट्यूब भी ऑपरेट करना है तो इजीली ऑपरेट होना चाहिए, उसमें 10 सोफिस्टिकेशन नहीं होना चाहिए which is going to scare them off। तो ये एक चीज है। दूसरी एक चीज है कि वो भी काफी सारे प्रोडक्ट दे आर परचेजिंग बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस सिंबल। फाइन, सो rural consumer they will look for ease of operation rather than add-on features on TV set या किसी भी चीज के लिए। John Deere for example is the leader in above 50 horsepower tractor segment. A farmer may not require such a powerful tractor for his work need, but the farmer buy it to boost his social status। तो इंडिया में जितनी हमारी लैंड होल्डिंग है उसमें एक मार्जिनल फार्मर को 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो खरीद रहे हैं क्योंकि वो उसका सोशल स्टेटस बढ़ा रहा है, उनको एक डिग्निटी दे रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपनी सोसाइटी में, तो वो 50 हॉर्स पावर का जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदते हैं। इज दैट क्लियर? अलग अलग तरह की सोसाइटीज है और इन रूरल इंडिया एफ्लुएंस वो लोग होते हैं जिनका सोशल स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, पॉलिटिक्स में है, सरपंच है, गाड़ियां है, जेवर है, गोल्ड है, टेलीविजन है, घूमने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें एफ्लुएंस बोलते हैं गांव में। वेल ऑफ जिनके उनसे थोड़ा कम, जिनके पास बाइक है, विलेज, फ्रिज, कलर टेलीविजन, रेडीमेड क्लोथिंग पहन रहे हैं। क्लाइमर्स जिनके पास मोपेड है, ऑडियो सिस्टम है, टेलीविजन, मिक्सर, पक्का घर, एलपीजी। एस्पिरेंट्स जिनके पास बाइसिकल, फैन और आयरन है। डेस्टिट्यूट जो अभी रिस्ट वॉच, प्रेशर कुकर, रेडियो, बाकी और ड्यूरेबल्स उनके पास नहीं है। तो ये कैटेगरी बनाया है स्टेटस सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमने एफ्लुएंस, वेल ऑफ, क्लाइमर्स, एस्पिरेंट्स और डेस्टिट्यूट का। इज दैट क्लियर?
Personality and self-concept. What do you understand by personality and self-concept? What is personality and what is self-concept? Yashwant, what is a personality and what is a self-concept? बताओ. Yes, Ramanuj. ऐसे वो बात करता है क्या उसका एटीट्यूड है. हाँ. हाँ. चीजों को लेकर. हाँ. हाँ. और सेल्फ कंसेप्ट. Yes. अपने बारे में पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है, अपने बारे में क्या सोचता है. बताओ पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. पर्सनालिटी में जैसे एटीट्यूड, ड्रेसिंग सेंस आ जाएगा, हाँ. लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज. अच्छा. और सेल्फ कॉन्सेप्ट में मतलब तो खुद की मतलब विचार समझता है किस तरह से मतलब लोगों का. बताइए दीपांकर. पर्सनैलिटी मैम वही लिविंग स्टाइल कैसा है उसका, और मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस. प्रज्वल पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. कौन सी चीज़ हम पे क्या कैसे सूट करे उसको लेकर के हमारा माइंडसेट क्या है. और मैम सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि उस चीज़ को लेकर के मैं मेरा क्या उस चीज़ के प्रति. पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है और लोगों को क्या दिखाता है इन द सोसाइटी. एंड पर्सनालिटी इज बेसिकली लोग उसके बारे में क्या परसेप्शन है. पर्सनालिटी में है जैसे गांव पे एक रहते हैं जो मूछ ऐसे करते हैं. हाँ. वो थोड़ा सा डोमिनेंट Okay. पर्सनालिटी होता है उनका. और सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि उनका किसी चीज के प्रति क्या ओपिनियन है, मतलब उनका अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो ओपिनियन देते हैं उस हिसाब से. हाँ बताओ विशाल, व्हाट इज पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. पर्सनालिटी लाइक मेरी लुक या मेरा मतलब जो पर्सनालिटी है वो. यस. हाँ. और सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लाइक कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ. यस. पर्सनालिटी वो होता है कि मतलब who we are, and self concept वो होता है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं अपने. Who we are and कैसे बिहेव कर रहे हैं. कंफ्यूज क्यों कर रहे हो तुम. See what is personality is. Personality is how you are behaving with the outside world, how you're carrying yourself, how you're talking, what is your nature, आप खुद को कैसे लो आप. और self concept is what you think about yourself. Like Shivansh can be a good marketer. He is thinking about it that way. इसे लगता है कि बहुत अच्छा मार्केटर है, इसको लगता है कि इसके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, इसको लगता है कि सारे प्रोडक्ट सेल कर सकता है, इसको लगता है ये कॉर्पोरेट में अच्छा काम करेगा. बट यही सब चीजें एचआर को भी लगनी चाहिए ना. ये तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट था. अगर ये सब चीजें एचआर को इसकी पर्सनालिटी में दिखती है तो इसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी और इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट मिल रहा है. आप ही सोच रहे हो अपने बारे में कि मैं फन्ने खान हूँ, सामने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि आप फन्ने खान हो या कुछ हो, आप में कुछ दम है. ठीक है, आप मन में तो अपने बारे में कुछ भी सोच सकते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो आपका कुछ भी हो सकता है, राइट. बट आपकी पर्सनालिटी में भी तो दिखना चाहिए कि वो क्या है. तो जब आपकी पर्सनालिटी यानी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनालिटी मैच होते हैं, आपके ब्रांड का पर्सनालिटी मैच होता है, तो आप वही प्रोडक्ट खरीदते हो. आप जो पहन रहे हो, जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो खरीद रहे हो, जिस तरह के कपड़े, जूते, चश्मे खा रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेट करता है. तभी आप उस तरह के कपड़े खरीदते हो, उसी तरह के जूते खरीदते हो, उसी तरह की घड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, बिकॉज आपको उसकी पर्सनालिटी से मैच हो. मैं आपको एक कपड़े दे दूं जो आपकी पसंद के नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी को मैच ही नहीं करते, आप पहनोगे ही नहीं, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं होती. तो ये जो कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी, ये सत्यप्रकाश जस्ट 2-3 मिनट, जो पर्सनालिटी का आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है मैच होने का. क्योंकि हम कई बार कोई फीमेल्स या कोई मेल्स कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए हायर करते हैं फॉर रूरल मार्केट, बट अगर उनकी पर्सनालिटी रूरल कंज्यूमर से मैच नहीं हो रही, उस प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रही, तो ब्लंडर हो जाता है. जैसे कि बर्तन डिश वॉशर के लिए हेमा मालिनी को चूज किया, राइट. अब हेमा मालिनी वाज अ ड्रीम गर्ल, लोग रिलेट नहीं कर सकते कि ये बर्तन साफ करेंगी हमारे लिए, है ना. तो वो जो मार्केटिंग कैंपेन था फ्लॉप हो गया, बिकॉज पर्सनालिटी ऑफ ड्रीम गर्ल वाज नॉट मैचिंग विद द पर्सनालिटी ऑफ प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर आप दीपिका पादुकोण को लाइजॉल के लिए ले लें, पोछा लगाने के लिए, तो कहाँ एलबी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण. हाँ जी. मैम एक
आलिया भट्ट ने फ्रूटी का किया था, Yes. where she was promoting sugar. Yes, It showed exactly. that sugar is Yes, it harmful. shows. So that is another thing. ये जितने भी celebrities हैं, अगर the same thing which I was telling, कि मैं सुबह आपके लिए कप लगा रही हूँ, बच्चे बोलते हैं आप लगाइए, मैं 10 दिन नहीं लगाती, I'll give message ना आपकी morning stories नहीं आ रहे, it motivates us to wake up early, पता नहीं कैसे motivate करते हैं, but they keep on messaging me, मैम please लगा दीजिए, हमें motivation होता है सुबह उठने के लिए। उठकर वही देखते हैं पहले। Exactly. जैसे भगवान को देखा करो, भगवान की शक्ल देखा करो। आज तो क्लास की मॉर्निंग चेक करेंगे। So what I'm telling you, what Akshita is saying is absolutely right. Alia Bhatt खुद तो वो drinks ले नहीं रही है, like Tiger Shroff, वो खुद तो एक piece of cake भी नहीं खा रहे हैं कि उनके abs कम हो जाएंगे, और वहाँ वो क्या वो विमल ठीक है अजय देवगन, ये लोग ना अल्कोहल लेते हैं ना ड्रिंक्स लेते हैं। So there are many actors, they will never tell you. They will never tell you because they don't want to tell you. They are not taking hard drinks. They are not taking because they cannot. उनकी जो body है, जितना आप हमें लगता है उनका काम बहुत easy है. It's a very difficult job. वो body maintain करना. आप एक कॉलेज के लिए शूट दो, उसमें आप थक जाओगे अगर किसी दिन आपका शूट हुआ तो. You will be like we are so exhausted to shoot for. आप कर ही नहीं सकते ना, वो आप लाइफस्टाइल फॉलो ही नहीं कर सकते. एक टाइम तक ये फिल्म स्टार्स हैं, ये सारे क्रिकेटर्स हैं, एक लेवल पे they all are losing, leaving all these things ना. You cannot. आप सोचो आपको क्या लगता है विराट कोहली महंगी सी महंगी, he can take drugs, he can take alcohol, but he will not. Because you need to be disciplined, you need to follow a routine, then only you can rise to that level. आपको क्या लगता है इतने बड़े-बड़े पोजीशन पे लोग नहीं करते हैं? They cannot afford to. मैं रोज दारू पी के बैठ जाऊँ शाम को, अगले दिन में कैसे हो? It's not possible. I have a check. No, it's a fact. What do you think? I cannot drink. I cannot consume. I don't have the money. Anybody is going to tell me, but it's a life choice. If I have to be of the health condition कि मैं पढ़ाऊँ, मैं 10 घंटे बोलूँ, 5 घंटे बोलूँ, मैं पैसे कमाऊँ, I need to grow in my life. I cannot be that irresponsible with my health. It's a fact. I'm sharing very common thing with you. मैं तो hangover में vomiting ही करती रहूँगी अगर मैं तुम्हें यहाँ पे, और अगले दिन सुबह उठ के lecture कौन देगा? कैसे बोल सकती? नहीं बोल सकती. एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा. It is not sustainable. ठीक है, fun is different, party is different. That is your age. But your personality, what she's saying, you are selling wrong things to people. बच्चे आपके products खरीद रहे हैं, वो खा रहे हैं और आप खुद नहीं खा रहे. कितनी गलत चीज है ये? What you are promoting in the society, आप वो promote करो ना. अगर मैं दारू पी रही हूँ तो मैं बोलने के लायक ही नहीं हूँ तुम्हें कि तुम मत पियो. From my own experience, how can I tell you? मैं खुद दारू पी रही हूँ और बाहर जाके प्रवचन कर रही हूँ, अपने स्टूडेंट नहीं पीनी है तुमको, नहीं लेना है कुछ भी. So that is wrong. So this is what, कहाँ इमेज खराब होती है, यहाँ इमेज खराब होती है. So you don't believe. So now nobody believes on these celebrities. इनकी कोई इमेज ही नहीं है. पहले इनको जितना पूछा जाता था उनको पूछते ही नहीं है, because you don't treat them like anything. आजकल कोई किसी को नहीं ट्रीट करता. नॉर्मल इंसान की ज्यादा बेटर इमेज है rather than these celebrities because of the fake personality and self concept. यही है. We'll discuss it later in the class. Thank you.